students. This is the chapter number 16 and we are studying about the Madhya Pradesh Vidhan Sabha. So in this video we will read about the powers and function of the Vidhan Sabha. Let's start. There are two main functions of Vidhan Sabha. First, to make laws, and second, to pass the budget. However, they have another important function, public welfare. Through various mediums, information regarding government policies and departmental proceedings, the members of the Vidhan Sabha perform these functions through the process of asking questions. The member of the ruling party or the opposition can ask questions as per the norms and the government has to answer them. The Vidhan Sabha controls the work of the government departments so that the government does not become despotic towards any one group or may not take any step which is against the welfare of the people at large. The Vidhan Sabha members do this through various motions like stop work motion, calling attention motion, by asking questions, proposal to make a cut in the budget, etc. If a serious situation occurs, then a no confidence motion can also be presented against the government. अब जो विधानसभा होती है उसके पास पावर होता है लॉ बनाने का और बजट पास करने का। इसके साथ साथ उसका एक और फंक्शन होता है पब्लिक की भलाई के लिए कार्य करना। अब गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है और जो भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें पब्लिक की भलाई छुपी होती है और उनको पब्लिक को ये बताना होता है, इन्फॉर्म करना होता है कि हम ये इस काम से पब्लिक की भलाई होगी। और जो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो उस कोई भी यदि फंक्शन है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो रूलिंग पार्टी होती है या अपोजिशन पार्टी होती है वो क्वेश्चंस पूछकर और जो उन्होंने मान लीजिए कोई नियम बनाया है तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और यदि वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर उसका बहिष्कार भी करते हैं और गवर्नमेंट को ये सारे आंसर देने होते हैं। विधानसभा का जो सारा फंक्शन है, जो सारा कंट्रोल है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ ये उन मेंबर्स की जवाबदारी है, विधानसभा के मेंबर्स की जवाबदारी है कि वो यदि कोई भी कदम उठाते हैं तो वो कदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भलाई ना हो रही है, लोगों की भलाई के विरोध में हो। और गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली चलाने के लिए हर साल बजट भी पेश करना होता है ताकि जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्ली सही तरीके से चल सके। और यदि मेंबर्स जो हैं उस बजट का सही उपयोग नहीं करते हैं तो अपोजिशन पार्टी और जो दूसरे लोग होते हैं वो उसके विरोध में क्वेश्चंस भी करते हैं और गवर्नमेंट यदि आंसर नहीं दे पाती है या कोई ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है तो इसमें जो गवर्नमेंट के विरोध में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है। Now, formatting law. The Vidhan Sabha has the right to make law on all the 62 subjects given in state list. It makes laws as per the requirement of the state on these subjects. Intensive debate is conducted on the bill proposed by the government. After discussion, the House passes the bill. After the bill is passes in the House, it is sent to the governor for assent. If governor so decides, he can send it to the president for consideration. After the sign of the governor or the president, the bill becomes a law. अब विधानसभा के पास ये अधिकार होता है कि वो स्टेट लिस्ट में जो 62 सब्जेक्ट है उनके ऊपर कानून बना सके और उनके ऊपर बिल ला सके। और बहुत डिस्कशन किया जाता है किसी भी बिल पर और सारे हाउस में जब सभी लोग उससे एग्री हो जाते हैं उसके बाद वह बिल जो है वह हाउस में पास करने के बाद गवर्नर के पास भेजा जाता है। यदि गवर्नर भी उस बिल से सेटिस्फाई होता है तो वह आगे प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेजता है और साइन उसके बाद उस बिल में गवर्नर या प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद वह बिल जो है वो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। Now financial function. The Vidhan Sabha controls the finance of the state.
Money is required to access to policies formed by the government. For this purpose, every year a budget is prepared which deals with income expenditure and is presented in the Vidhan Sabha. After passed in the assembly, it is sent to the governor for his assent. All the financial work executed after this. The finance minister in the house presents the financial bill. अब फाइनेंशियल फंक्शन क्या है? विधानसभा जो होता है वो स्टेट के सारे फाइनेंस को कंट्रोल करता है और इसके लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती है। हर साल उन पॉलिसीज़ के ऊपर बजट बनाया जाता है और बजट का खर्च और इनकम इसे विधानसभा में पेश करना होता है। असेंबली में जब यह बजट पेश किया जाता है तो असेंबली में यदि वो पास कर दिया जाता है तब फिर वो गवर्नर के पास भेजा जाता है और सारे फाइनेंशियल व्यूज़ पर देखने के बाद, उस पर सोचने के बाद गवर्नर जो होता है उस बिल को यदि पास कर देता है तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है उस बिल को उसमें पारित कर देता है और वह बिल फिर लागू हो जाता है। नाउ विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल। द स्टेट्स विच हैव टू हाउसेस, द गवर्नर, विधान परिषद एंड विधान सभा आर कलेक्टिवली कॉल्ड विधान मंडल। एट प्रेजेंट बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र हैव विधान मंडल. There is no such house in Madhya Pradesh. The Vidhan Sabha is called the first lower house and the Vidhan Parishad is called the second or upper the हाउस. अब विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये क्या है? स्टेट है, कुछ स्टेट होते हैं जिनमें 2 हाउस होते हैं और वहाँ पर गवर्नर, विधान परिषद और विधानसभा ये सारे मिलकर के विधान मंडल बनाते हैं. आज के समय वर्तमान में बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र में विधान मंडल है. हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही हाउस है विधानसभा, यहाँ पर विधान मंडल नहीं है. फर्स्ट जो हाउस होता है वह लोअर हाउस एंड विधान परिषद जो है वो सेकेंड या अपर हाउस कहलाता है. अब एक्सरसाइज है इस चैप्टर की. वी विल डू दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो.